first lesson knowing our number of class 7. In 7th grade मैथमेटिक्स का lesson 1 chapter knowing our number में हम लोग पढ़ेंगे multiplication of integer, यानी integer का multiplication. When we multiply positive integer into positive, यानी जब positive integer का positive integer से multiply करते हैं then we get positive integer. It means when we multiply 2, we know that 2 is positive integer and 3 is also positive integer. We get 6. 6 is also positive integer. When we multiply positive integer into positive integer, then we get positive integer. Because when we multiply 2 into 3, we get 6, and 6 is also a positive integers. Okay. Second, negative integer into positive integer. When we multiply negative integer into positive integer, we find negative integer. लेकिन जब भी हम लोग नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. जब भी नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर ही फाइंड होता है. जैसे -1 into 5. -1 is negative integer and 5 is positive integer. We find 1 factor 5. 5 है positive side है, 1 है negative side है. minus into plus equal to minus. Here you write -5. Okay. And third, when we multiply positive integer into negative integer, when we multiply positive integer into negative integer, then we get negative integer. Like as when we multiply 6 into -5, then we get -30. When we multiply 6 is positive integer and -5 is negative integer, and when we multiply 6 into -5, we find -30. And four conditions. When we multiply negative integer into negative integer, we find positive integer. जब भी हम लोग नेगेटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग क्या फाइंड होता है, हमको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड होता है. जैसे -2 into -3, -2 into -3. Simply first of all we multiply digit in digit. 2 3 are 6, 2 3 are 6, and minus into minus plus. क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस साइन क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं, लिखते नहीं है. नेक्स्ट, अभी से स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का प्रॉपर्टी को क्या करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. Property of multiplication of integer. First property, we shall study closure property of multiplication. Closure property of multiplication. Closure property of closure property of multiplication. Closure property. यानी closure property main property होती है. In closure property, if we multiply two positive or negative integer and we get the result will be also a positive integer or negative integer, then we can say that the integers we are called closure property of multiplication. इन हिंदी, जब भी हम किसी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों का रिजल्ट
जो फाइंड होता है वो भी क्या फाइंड होता है, एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ही फाइंड होता है। तो वो जो इंटीजर होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करते हैं। जैसे मान लो 2 and 3 हम लोग लेते हैं दोनों का पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपस में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3 we get 6 and 6 is also a positive integer, 6 is also a positive integer, and then we can say that the integers are closed under property of multiplication। जो इंटीजर होते हैं वो क्लोज होते हैं किसके अंतर्गत, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जो इंटीजर होते हैं वो होल्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्टडी अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर जब भी आए तो उसका मतलब यही होता है कि जिस नंबर के रिस्पेक्ट में आए, यहाँ पे इंटीजर है, होल नंबर के रिस्पेक्ट में आए, इंटीजर के रिस्पेक्ट में आए, हम लोग इतना जानते हैं, जो दो नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आता है मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के रिस्पेक्ट में आता है डिवाइड करते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में आता है तो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी मान लो जब भी दो ठो इंटीजर का क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हमको फाइंड होना चाहिए वो रिजल्ट क्या फाइंड होना चाहिए, हमको इंटीजर ही फाइंड होना चाहिए। अब पढ़ना आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड बात है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि हम दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये होता है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सबसे पहले इसका मतलब समझो, यदि देखो हम लिखें 2 इंटू 3 3 इंटू 2 2 3 या 6 3 2 या 6, इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर का प्लेस चेंज कर देने पे, यदि प्लेस चेंज कर देने पे यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन होता है तो उनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यदि हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3, यानी यहाँ पे 2 वाले हैं 3 बाद में, ठीक है, उसके बाद भी यदि मल्टीप्लाई करें 3 को पहले करके 2 को बाद में करके, तो दोनों का रिजल्ट जो आता है क्या आता है, सेम आता है, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो जो हमारा इंटीजर होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लो दो इंटीजर लेंगे -5 एंड 2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये a इक्वल टू समझ लो, ये b इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -5 and value of b equal to 2 equal to value of b equal to 2 and -5. Here we get -5 to the -10 and 2 5 the -10. Here we see that LHS equal to RHS. Hence integer are whole commutative property under multiplication, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन करते हुए क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी properties of multiplication, associative property of multiplication, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, इसे लिखते हैं a इंटू बी मापने पे इंटू सी इक्वल टू
ए इंटू इमेज मान करेगा बी इंटू सी। ठीक है, ये 3 को इंटीजर हमारे पास हो, ठीक है, और तीनों का मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, तो दोनों का यदि रिजल्ट क्या जाना चाहिए, तीनों का रिजल्ट यानी दोनों साइड का रिजल्ट क्या है, सेम आ जाए, तो इंटीजर हमारा होल्ड करेंगे किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, और तीनों का रिजल्ट यदि सेम नहीं आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। चलो लेते हैं a equal to -1, b equal to 2 and c equal to 3. Now if you put the value of a, b, c in associative property a into b, देखो याद करने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले a b c तीन तो इसमें आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, a b को पहले लिखे तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर c बाहर करते हैं। ठीक है, और RHS में a को पहले लिख करके b और c यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 into 2 कर्ली ब्रैकेट into c, value of a equal to 3 and value of a equal to -1 into 2 into 3 minus 1 into 2 minus 2 into 3 minus 6 equal to 2 3 are 6 into 1 6 minus 1 here LHS equal to RHS. Here we see that LHS equal to RHS, hence integer are satisfied associative property of multiplication. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर दैट नंबर व्हिच मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट नंबर। यानी ये नंबर होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होते हैं आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी जो सिंगुलर होता है, वन होता है, जो वन होता है हमारा, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज दैट नंबर by which if you multiply any number then there is no effect the value of that number। यानी जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह नंबर होता है जिससे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कोई नंबर हमारे पास 15 हो, उससे वन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी भी संख्या में जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0 को छोड़ के, क्यों 0 into 1 है नहीं सही, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो हमारा 1 होता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज द नंबर by which if you multiply in any number then there is no changing the value of that number। यानी उस वैल्यू नंबर के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो जो नंबर होती है हमारा क्या कहलाती है, वो जो आइडेंटिटी होती है क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। यानी if you multiply into 1 you get 3। ठीक है, सी नेक्स्ट जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी किसी भी इंटीजर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 फाइंड करना है। जैसे किसी भी नंबर में 5 into 0 करें 0, -2 into 0 करें 0। ठीक है, नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज का है अभी तक तो उन्होंने अच्छा चलो in exercise 1.2 question number first है which of the following statement are true and which are false। कौन ट्रू है कौन false है, इसको देखो इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स करना है ना। पहला 4 into -3 equal to -3 into 4
दिखाई दे रहा है a into b equal to b into a. Which property? This is which property? This is commutative property of multiplication. ना ये कौन सा property है? Commutative property. And commutative property we know that a into b equal to b into ये दोनों का रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है. तो इसको देख लो. 3 4 क्या? -12 माइनस है तो ये हो जाएगा. इक्वल टू इसको देख लो. ये क्या हो जाएगा? 3 4 -12. ये रिपीट है. LHS equal to RHS, hence the given statement is true under commutative property of multiplication. commutative property के अंतर्गत ये जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू है. यानी पहला क्या हो जाएगा? ट्रू. सेकेंड 453 into 1 equal to -402. ये देखो दोनों पॉजिटिव है LHS में और RHS में नेगेटिव वैल्यू आ गया, फॉल्स है. थर्ड 4 into थर्ड भी फॉल्स है. फोर्थ क्या है? -3 into -7 इज एन इंटीजर और आ है -3 into -7 इज एन इंटीजर. फर्स्ट अपन को मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 माइनस into माइनस प्लस 21 आल्सो इज एन इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर है. ट्रू है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 सेट है